Good evening, class. In last video, we have completed the natural resources of class 9th and we have successfully completed our bio portions, and now the only one chapter is left, and that is the improvement in food resources. Okay, and in this chapter, the there is not a very hard topic and all the topics are very easy, so we will discuss a very slowly manner, and we will discuss all the important things in this chapter which the most priority to come in the exam purpose. Okay, so in this we are going to discuss that how the food resources are generally improved. Okay, so suppose we know that the human beings are, maybe living beings, are totally dependent on foods, and what is the nature of food and where we are getting the food, food का nature क्या होता है, food कहाँ से मिल रहा है, so many things we have to discuss. Okay, why? Because food is a very essential and important components for the any human beings, any animals. ठीक है, जितने भी organisms होते हैं which are present in our earth, so all are dependent directly on the producers. सभी के सभी लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्रोड्यूसर्स के ऊपर. एंड वी नो दैट द प्रोड्यूसर्स, इनमें से हमारे पास प्रोड्यूसर्स में कौन आता है? सो प्रोड्यूसर्स में हमारे पास हेयर द प्लांट्स आर देयर. हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रोड्यूसर्स हैं सो दे आर प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं. मोस्टली दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारे चीज़ों को ये प्रोड्यूस करते हैं, एंड वी ऑब्टेन सेवरल टाइप्स ऑफ things from the plants and we called as consumers. ठीक है, ये producers होते हैं और हम जो है consumers होते हैं. Animals are directly based on the plant product and plant is the producer, because plants जो है बहुत सारे products को तैयार करते हैं day by day और वो हमें provide करते हैं और हम जो है उनको consume करते हैं. ठीक है, so we are called as consumers. Now before starting we are going to discuss that the improvement in food resources. Suppose food is given in a lot of amount, food बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे नेचर में अवेलेबल है, बट वी हैव टू टेक अ प्रॉपर इम्प्रूवमेंट्स. हमको इम्प्रूवमेंट करके उन फूड को बहुत अच्छा बनाना है. सो how the major systems are there to improve the food resources. ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जिससे हम अपने फूड रिसोर्सेज को और अच्छा बना सकते हैं. सो वी विल डिस्कस ओनली outlooking topics which I have mentioned in board. So we will study one by one in a detailed manner. Okay, so first we are going to discuss that why the need of improvements. हमें फूड में improvements की क्यों जरूरत है? अगर फूड्स हमारा improve नहीं होगा, so which types of affected outcomes will become, किस प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे. ओके, सेकंड, the crop improvements. What is the meaning of crop improvements? Suppose if there is any farmer, अगर कोई farmer है and he is growing several types of crops, actually he doesn't know the meaning how to grow crops, how to use pesticides, how to sow seed, different types of system. If he doesn't know, so it means that the crop will not grow properly. So crop improvements should be there to implement different types of techniques to getting a proper and hybrid variety of plants. So that is called crop improvements. अगर कोई किसान को खेती के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, टेक्निक्स के बारे में पता नहीं है, तो वो जो भी फसल उगाएगा उसके बारे में, उसके आउटकम्स के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में, उसके प्रॉपर इरिगेशन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होगा. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर जनरली देयर. क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट्स, वी नो दैट देयर इज अ सेवरल एंड लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप. क्रॉप बहुत प्रकार के होते हैं. ठीक है, क्रॉप्स में हम लोग सीरियल्स क्रॉप अलग होते हैं, रबी क्रॉप्स अलग होते हैं. ठीक है, जायद क्रॉप्स अलग होते हैं, खरीफ क्रॉप्स अलग होते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स हैं. ठीक है, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्रॉप वेराइटीज आर देयर इन अवर वर्ल्ड एंड वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फॉर ईटिंग, फॉर ग्रोइंग एंड फॉर सेलिंग. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हम खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को हम ग्रो करके ताकि उसे हम एक्सपोर्ट कर सके और उसके बदले में हमें प्रॉफिट मिल सके. सो वी डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू गेटिंग अ वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन क्रॉप. नेक्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अगर हमने क्रॉप बना लिया है, ठीक है, सपोज वी हैव डन द एग्रीकल्चर सक्सेसफुली एंड वी गॉट द क्रॉप, हमें क्रॉप भी मिल चुका है, जो हम फसल की खेती कर रहे थे उसका हमें क्रॉप मिल गया है. दैट टाइम वी हैव टू डू द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट. उसका हमें प्रोडक्शन करके कैसे हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना है. बाय दिस वी कैन गेट द लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. दैट इज कॉल्ड द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसे हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो after that, if the crop production management is totally completed, now we have to move from the nutritional management. अगर हमारा crop fully
तैयार है, देन वी हैव टू गो थ्रू द न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब होता है, सपोज इफ वी आर नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट, we are not taking a balanced diet means we are not taking a carbohydrate, we are not taking a proteins, we are not taking a fats, vitamins, बहुत सारी चीज़ें अगर हम नहीं ले रहे इन अवर डाइट, हम लोग अपने खाने में, दैट टाइम वी विल बिकम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, हम लोग को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो दैट टाइम द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट शुड बी देयर टू इम्प्लीमेंट द बेस्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड बेस्ट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशनल थिंग्स। जैसे न्यूट्रिशनल में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्रॉप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ताकि हमारा जो क्रॉप है वो बहुत ही फर्स्ट लेवल का हो और किसी के लिए भी बेनिफिटेड हो। ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर द क्रॉप मैनेजमेंट के बाद अब हमें देखना है इरिगेशन सिस्टम। अगर हमें क्रॉपिंग करना है, सो विच टाइप ऑफ इरिगेशन शुड बी इंस्टॉल्ड इन अवर एग्रीकल्चर, किस प्रकार का एग्रीकल्चर सिस्टम में हमारा इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वी हैव स्टडीड इन क्लास 8th में हमने देखा है ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, पाइप सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हमने देखा है जिससे हम एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन करते हैं, यानी पानी का सिंचाव, ठीक है, जिससे हमारा खेत है प्रॉपर अमाउंट में उसको वाटर मिल सके और उसका जो प्रॉपर ग्रोथ जो है वो हो सके, ठीक है। सो इरिगेशन सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट इज मोस्ट बेनिफिटेड फॉर द farmers. Why? Because if the irrigation is not suitable for the crop, it means the crop will not grow properly. अगर proper irrigation नहीं मिलेगा, हमारा crop जो है वो भी proper नहीं हो पाएगा, ठीक है। So आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट क्रॉपिंग पैटर्न्स। जो क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न्स में ऐसा नहीं कि हमने जहाँ पे राइस का क्रॉपिंग किया वहाँ पे हम वीट का भी क्रॉपिंग करते, वहाँ पे हम वीट के अलावा मस्टर्ड की क्रॉपिंग करते, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो क्रॉपिंग पैटर्न शुड बी देयर, ठीक है, एंड क्रॉपिंग पैटर्न शुड बी गैप भी होना चाहिए क्रॉपिंग पैटर्न में। बाय दिस the soil gets humidity and soil gets many more nutritional valuable things आफ्टर दी हार्वेस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें सॉइल को थोड़ा सा फ्री छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और क्रॉप के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे क्रॉपिंग का पैटर्न्स है, इट मे बी टेरेस, इट मे बी जो टेरेस फार्मिंग होती है, किसी की स्लोपिंग फार्मिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस वन बाय वन बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। Okay, now next we are going to discuss that crop protection management. We know that if there is a crop in our agriculture field, so we have to use the different types of protection management. अगर हम crop का ध्यान नहीं रखेंगे, it means there is a lots of pest which can affect the plants. बहुत सा pest होते हैं, pest मतलब कीड़े मकोड़े जो हमारे पौधों को, जो हमारे crop को, हमारे पूरे के पूरे फसल को भी destroy कर सकते हैं, ठीक है। So अब हम बात करते हैं फूड सोर्स की, वेयर वी आर गेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सोर्स टू फुलफिल द ह्यूमंस नीड। अपने ह्यूमंस नीड को कंप्लीट करने के लिए हमें ये जो फूड रिसोर्सेस है वो कहाँ से मिलकर आती है, ठीक है। सो द फूड रिसोर्सेस आर जनरली कमिंग फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो भी हम लोग एनिमल्स को हस्बेंड्री करते हैं, हस्बेंड्री मतलब एक प्रकार का जानवरों को पाल के उनका प्रोडक्शन करना फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग में जनरली हम लोग काउस का, बफेलो का, बहुत सारे लोग का, ठीक है, इसमें जो है फार्मिंग करते हैं जिसमें हमको मिल्क और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सके, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग जनरली चिकन्स, हैंस वगैरह जो भी होते हैं जिससे हमें एग वगैरह मिल सके, ठीक है, मीट फ्लैश वगैरह मिल सके, सो दैट इज कॉल्ड दी पोल्ट्री फार्मिंग। में हैंस आते हैं, डक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिश प्रोडक्शन भी होता है एक प्रकार का, लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश, ठीक है, टू गेटिंग अ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए फिश का प्रोडक्शन करना ज़्यादा मात्रा में। बी कीपिंग करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी बी, एपीकल्चर कहते हैं इसको, ठीक है, एपीकल्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इसमें क्या होता है, जनरली आपका हनी यानी जो शहद होता है, ठीक है, जो हनी होता है वो इसी से तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड बी कीपिंग, ठीक है, एंड दिस ऑल ओवर द प्रोसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर, उसी को हम एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द आउटकम्स ऑफ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। हमें फूड्स की जो इम्प्रूवमेंट है उसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फूड। हमें पता है, वी नो वेरी वेल द ह्यूमन बींग्स, एवरी ह्यूमन बींग्स नीड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी लिविंग बींग्स इज कॉल्ड फूड। अगर किसी भी ह्यूमन बींग्स को अगर जिंदा रहना है तो ये उनका बेसिक नेसेसिटी है, ये उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइमरी नेसेसिटी है फूड। अगर फूड नहीं मिलेगा इट मीन्स दे कैन नॉट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वाई रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, फूड से क्या होगा उन्हें, ठीक है। सो दे कैन डेवलप बिकॉज
फूड प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फूड में प्रोटीन्स होते हैं, फूड में फैट्स होते हैं, फूड में विटामिन्स होते हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज फूड कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, फूड कंटेंट protein, food contain fats and food contain vitamins. Lots of nutritional things food can cover, and if the food is provided to any human beings or any animals, their body is totally developed. उनकी बॉडी भी डेवलप होगी, उनका मेंटल भी डेवलप होगा और भी बहुत सारी चीजें डेवलप होगी. ठीक है. रिक्वायर ऑफ फूड, अब हम जैसे बात कर रहे थे किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए व्हाई द फूड इज रिक्वायर्ड, फूड की क्या जरूरत होती है. सो फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी. अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड का बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर फूड नहीं मिलेगा बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी. सेकंड, बॉडी का डेवलपमेंट. बॉडी का डेवलपमेंट मतलब इट इज नॉट अबाउट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑल्सो. डेवलपमेंट का मतलब होता है आपके मेंटल डेवलपमेंट, आपका ब्रेन डेवलपमेंट, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट है, वो भी नहीं हो पाएगा. एंड बॉडी की मेंटेनेंस जो है वो भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज फूड इज ऑल्सो अ फ्यूल. अगर गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलेगा गाड़ी बंद हो जाएगी. सपोज सेम हियर, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द एग्जैक्ट फ्यूल ऑफ योर बॉडी, डेफिनेटली योर बॉडी फंक्शन विल बी रूइंड. आपकी जो बॉडी का फंक्शन है वो खराब हो जाएगा. So most important, these are the substance which can affect our human body. ठीक है. After that we know that what is the sources of food. Food के sources क्या है. ठीक है. We know that the sources of food is only two, agriculture and animal husbandry. या तो खेती करके हम अपना खाना ले सकते हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री से हम अपने खाने को ले सकते हैं. बट these two are very important क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री बहुत छोटे. ठीक है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर देयर इन इंडिया एंड दे डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड सम ऑफ द पर्सन्स आर जनरली यूजिंग एनिमल हस्बेंड्री. तो अगर हम सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में बात करते हैं तो हमें जो फूड है वो एग्रीकल्चर से मिलेगा यानी खेती किसानी करके, और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों को पाल के उनका प्रोडक्शन करके, वेदर इट इज मिल्क, वेदर इट इज एग्स या वेदर इट इज फ्लैश, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करके वी कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ फूड. Okay, so this is enough for today class of improvement in food resources. In next phase we will discuss some more varieties of crops and the rabi crops and kharif crops we will also discuss. Okay, till then you have to study very well. If you get any doubt regarding the topic you can contact me. Thank you, students.